آتش فشاں بک 2 پارٹ 22 آواز لبابہ حیدر پیشکش میر کارواں۔ وانگ ٹیلی فون بند کر چکا تھا اور اب وہ لوما سے باتیں کر رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے سردار تھالوب کو اطلاع دے دی ہے۔ سردار 3-4 گھنٹوں میں یہاں پہنچ جائے گا۔ میں ہائی وے پر جا رہا ہوں، تم تھائی کو دیکھو، اگر اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو۔ وہ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ صرف صدمے اور خوف سے بے ہوش ہوئی ہے۔ رنگولی اور جانکی اسے ہوش میں لے آئیں گی۔ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ نہیں باس، پولیس وہاں پہنچ چکی ہوگی اور اب تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دینا باس، اس وقت تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ وانگ ڈن کے جانے کے بعد میں دوبارہ ہال میں آ گیا۔ رنگولی ایک گیلے کپڑے سے تھائی کا چہرہ اور گردن وغیرہ صاف کر رہی تھی۔ ہم اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد تھائی نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ جانکی نے اسے سہارا دیا اور رنگولی نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ تھائی نے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس ہٹا دیا۔ اسی وقت لوما ایک پیالہ لے کر آ گیا۔ اس میں بنفشی رنگ کا شربت تھا۔ یہ شربت میڈم کو پلا دو باس، چند منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے پیالہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ شربت سے سندل جیسی خوشبو اٹھ رہی تھی اور شاید ذائقہ بھی بہت اچھا تھا، اسی لیے تھائی نے بھی پی لیا۔ لوما نے بتایا کہ سندل میں کچھ اور جڑی بوٹیوں کے رس کی آمیزش سے یہ شربت تیار کیا جاتا ہے، جو فرحت بخش ہونے کے ساتھ نہایت مخفی بھی ہے۔ تھائی کے لیے شربت کے چند گھونٹ واقعی اکسیر ثابت ہوئے۔ چند منٹ بعد ہی اس کے حواس بحال ہونے لگے، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر بے پناہ خوف تھا۔ جانکی، اسے باتھ روم لے جاؤ اور نہلا کر کپڑے تبدیل کرا دو، میں نے کہا۔ جانکی اور رنگولی تھائی کو سہارا دے کر کمرے میں لے گئیں۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد باہر آئیں۔ تھائی کی آنکھوں میں اب بھی وحشت بھری ہوئی تھی اور خوف تو جیسے چہرے پر منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی ہماری شکلوں کو دیکھتی رہی۔ لوما نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کافی بنا لی۔ ہم اس وقت واقعی کافی کی طلب محسوس کر رہے تھے۔ کافی پینے کے بعد تھائی نے میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانکی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے تھائی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ بڑا جذباتی منظر تھا۔ جانکی اور رنگولی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بمشکل اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوا تھا۔ رو لینے سے تھائی کے دل کا بوجھ کسی قدر ہلکا ہو گیا اور اب وہ بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ کہ سب کیسے ہوا تھائی؟ کیا وہ لوگ شروع سے تم لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے آنے کی اطلاع تھی اور وہ لوگ پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ تم لوگ آ رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ چیانگ رائے میں وانگ سائی نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ تھالوب نے ہمیں مائے کاک ریور کے کنارے ایک مکان میں منتقل کر دیا تھا اور ہماری حفاظت کا بھی معقول بندوبست کر دیا گیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وانگ سائی یا اس کے آدمی مکان کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہیں وہاں سے ہماری روانگی کا بھی پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے یہاں ہمارے بارے میں دارا وغیرہ کو فون پر اطلاع دے دی۔ ہم پر فائرنگ سے تقریباً 15 منٹ پہلے پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار نے ہمیں اوورٹیک کیا تھا۔ اس کار میں ڈرائیور کے سوا اور کوئی نہیں تھا اور وہ ڈرائیور وانگ سائی تھا۔ وہ کار خطرناک حد تک تیز رفتاری سے آگے نکل کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے محافظوں کو وانگ سائی کے بارے میں بتا دیا۔ وہ محتاط تو ہو گئے تھے، پر ان کا خیال تھا کہ وہ اکیلا تھا اور ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اور پھر جب ہم اس جگہ پر پہنچے تو اچانک ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ پہلی گولی اگلے ٹائر پر لگی تھی۔ ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ جیپ بری طرح لہرا گئی۔ ڈرائیور نے پوری قوت سے بریک لگا دیا۔ زوردار جھٹکا لگنے سے میں سیٹ پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیٹوں کے درمیان فرش پر محافظوں کے پیروں میں گر گئی۔ اور اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتی، سڑک کے دونوں طرف سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرا خیال ہے فائرنگ سب مشین گنوں سے کی جا رہی تھی۔ ایک تسلسل کے ساتھ دونوں طرف سے گولیاں جیپ پر برسائی جا رہی تھیں۔ فائرنگ اور چیخوں کی آواز کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر شاید پرساد چیختا ہوا میرے اوپر گرا تھا۔ اسے پتہ نہیں کتنی گولیاں لگی تھیں۔ اس کے جسم سے بہنے والا خون مجھے بھی تر کرنے لگا۔ میں اسے اپنے اوپر سے ہٹانا چاہتی تھی کہ دونوں گن مین بھی چیختے ہوئے میرے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ میں ان تینوں کے نیچے بری طرح دب گئی۔ میں نے اگلی سیٹ پر بیٹھے گن مین اور ڈرائیور کی چیخیں بھی سنی تھی۔ فائرنگ تقریباً 5 منٹ تک ہوتی رہی اور پھر یکا خاموشی چھا گئی، گمبھیر سناٹا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی قبر میں زندہ دفن ہو گئی ہوں۔ میرے اوپر 3 لاشوں کا بوجھ تھا
और मेरा दम घुट रहा था। मैं गैर इरादी तौर पर अपने ऊपर से वो बोझ हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनकर मैंने अपनी कोशिश तर्क कर दी और सांस भी रोक लिया। मेरे जहन में अचानक ये ख्याल उभरा कि हमलावरों ने सबको ख़त्म कर दिया है। मुझे जिंदा पाकर वो मुझे भी छलनी कर देंगे। मैं उन लाशों के नीचे बेहोश हरकत पड़ी रही। कदमों की वो आवाज़ें जीप के करीब आकर रुक गई थी। वो कई आदमी थे, उनमें शायद 2 जीप के ऊपर से घूमकर पिछली तरफ आ गए थे। फिर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं जिन लाशों के नीचे दबी थी, उनमें सबसे ऊपर वाले मुहाफिज के जिस्म में शायद जिंदगी की रमक बाकी थी। गालिबन उसके जिस्म के किसी हिस्से में को हरकत पैदा हुई थी, क्योंकि उसी वक्त बाहर से एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, ये भी जिंदा है, ख़त्म कर दो उसे। और फिर मेरे सर के ऐन ऊपर गोलियों की बौछार। अगर राइफल की नाल का रुख जरा सा भी नीचे की तरफ होता तो गोलियां मुझे भी चाट जाती। ये सब कुछ चंद मिनट में हो गया और इस कदर अचानक हुआ कि हमारे मुहाफिज को अपनी जगह से हरकत करने का मौका तक नहीं मिल सका। और फिर दौड़ते हुए कदमों और किसी कार का इंजन स्टार्ट होने और उसके रवाना होने की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त तक मेरे हवास साथ छोड़ते जा रहे थे। मेरी आंखों के सामने तारीकी फैलती चली गई, लेकिन वो आवाज़ जिसने चीख कर कहा था, ये भी जिंदा है, ख़त्म कर दो उसे, वो आवाज़ मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। वो आवाज़ तो अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। कौन था वो? किसकी आवाज़ थी वो? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। दारा, वो दारा की आवाज़ थी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं उछल पड़ा। इसका मतलब था कि स्कॉटिश से फरार के बाद दारा ने कोई और ठिकाना तलाश कर लिया था और वहां से चियांग राय वालों से भी राब्ता किया होगा और वांग साई ने उसे थाई और प्रसाद के बारे में बताया होगा। थाई का यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था कि चियांग राय में उनकी मुसलसल निगरानी की जा रही थी, और जब थाई और प्रसाद मुहाफिजों के साथ वहां से रवाना हुए तो वांग साई समझ गया था कि ये दोनों चियांग सान आ रहे हैं। उसने फोन पर दारा को उनकी रवानगी की इत्तला दे दी। उनमें यकीनन ये तय हो गया था कि दारा और उसके साथी सड़क पर किस जगह घात लगाकर बैठेंगे। दारा को इत्तला देने के बाद वांग साई ने भी थाई की जीप का ताक़ुब करना शुरू कर दिया और फिर उनसे आगे निकलकर तयशुदा जगह पर घात लगाए बैठे दारा और उसके साथियों को बता दिया कि उसके बाद जो जीप आएगी वही उनका टारगेट होगी। दारा और उसकी पार्टी को मैं पिछले कई रोज से पैदल पे नुकसान पहुंचा रहा था और जाहिर है वो मेरे या मेरे साथियों के खिलाफ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मुझ पर हाथ डालना उसके लिए जरा मुश्किल था। आज सुबह तो मैं उसके काबू में आ गया था, लेकिन रंगोली की वजह से ना सिर्फ मैं और जानकी वगैरह बच गए, बल्कि दारा वगैरह को भी अपनी जानें बचाकर भागना पड़ा। किम हमारे हाथ लग गया था, लेकिन बाद में वो भी हैरत अंगेज तौर पर फरार होने में कामयाब हो गया। ये मालूम नहीं था कि किम फरार होने के बाद अपने साथियों के पास पहुंचने में कामयाब हो सका था या कहीं और पनाह लिए हुआ था। बहरहाल दारा को थाई और प्रसाद पर हमला करने का मौका मिल गया था। प्रसाद अपनी जान से हाथ धो बैठा था, लेकिन थाई अभी जिंदा थी, वो बच गई थी। मेरे ख्याल में दारा ने उस जीप पर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। वो जीप इस इलाके के सबसे बड़े कबीले कैरन के सरदार की थी। थाई और प्रसाद उसके मेहमानों की हैसियत रखते थे। प्रसाद के अलावा उसके 3 गनमैन और ड्राइवर भी मारा गया था। थालोब एक बासर सरदार था। उसकी जीप पर हमला, उसके 4 आदमियों और एक मेहमान की हलाकत किसी बहुत बड़े तूफान का पेशखैमा बन सकती थी। वांगडन ने सरदार थालोब को इस वाक़े की इत्तला दे दी थी और वो चियांग राय में अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर यहाँ आने के लिए रवाना हो चुका था। प्रसाद की अंधोनाक मौत का हम सबको अफसोस था। थाई की हालत भी बहुत बुरी थी। उसने सिर्फ प्रसाद को ही नहीं, 4 और आदमियों को भी अपनी आंखों के सामने गोलियों से छलनी होते देखा था। वो जिंदगी के खौफनाक तरीन तजुर्बे से गुजरी थी और उसका असर अब भी उसके जहन पर बाकी था। किसी वक्त बात करते करते वो एकदम चौंक जाती या अपनी जगह से उछल पड़ती। मेरे ख्याल में थाई को सुकून की जरूरत थी और नींद उसके लिए बेहतरीन मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन वो सोफे पर बैठी मतवहिश नजरों से कभी हमें और कभी इधर उधर देखने लगती। मैंने लूमा से किसी ऐसी चीज के बारे में दरियाफ्त किया जिससे थाई को नींद आ सके। अफ्यून, इसे थोड़ी सी अफ्यून खिला दी जाए, आराम से सो जाएगी। लूमा के मशवरे पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अफ्यून भी लूमा ने ही फराम की। थाई को अगरचे बहुत कम मिकदार में अफ्यून दी गई थी, मगर उसके कड़वे जायके से थाई के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए, मगर उसका नतीजा खातिर खा निकला। तकरीबन 15 मिनट बाद थाई पर गनूदगी तारी होने लगी। मैंने जानकी को इशारा किया, वो उसे उठाकर कमरे में ले गई। उस वक्त रात के 2 बजने वाले थे, मगर वांगडन की तरफ से अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली थी। सरदार थालोब पहुंच चुका होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो पुलिस या इंतजामिया के दीगर हुक्काम के साथ इस कदर मसरूफ होंगे कि उन्हें हमें फोन करने का मौका नहीं मिला होगा।
तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने उठकर कमरे में झांका। थाई गहरी नींद सो चुकी थी और जानकी उसी बेड की पुष्ट से टेक लगाए नींद दराज थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रसाद की मौत ने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया था। हमारे साथी एक एक करके बिछड़ रहे थे। पहले कांग उनके हाथों मारा गया, फिर पाथम हमारे हाथ से निकल गया। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा था और पेड्रो के आदमियों ने उसे अस्पताल से अगवा कर लिया था। अब उसकी जिंदगी की भी कोई तवक्को नहीं की जा सकती थी। फिर नोबिता इन खूंखार दरिंदों की दरिंदगी की शिकार हुई और अब प्रसाद। इन पै दर पर सदमात ने जानकी और थाई पर ज्यादा असर किया था। असर मुझ पर भी हुआ था, लेकिन मैं रोकर उसका इजहार नहीं कर सकता था। जानकी ने मेरी तरफ देखा, मगर मैं कोई भी बात किए बगैर दरवाजे से लौट आया और हॉल में रुकने के बजाय बाहर आकर लॉन में बैठ गया। बरामदे का बल्ब जला हुआ था। बाहर तारीकी थी। मैंने कॉटेज के अतराफ में कई सायों को हरकत करते देखा। ये वो कबायली गार्ड्स थे जो वांग डन कॉटेज की हिफाजत के लिए यहाँ छोड़ गया था। 2 कबायली मुहाफिज उनके अलावा थे जो कॉटेज से दूर जंगल में फैले हुए थे। मुझे उस वक्त अजीब बेचैनी सी हो रही थी। मैं उठकर लॉन में टहलने लगा। मैं चश्मे तसव्वुर से बार बार वो मंजर देखने लगता। तबाहाल जीप और उसमें पड़ी हुई गोलियों से छलनी लाशें। जीप और उन लाशों को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि फायरिंग किस कदर शदीद थी, और इसमें कोई शुबा नहीं था कि थाई वाकई खुशकिस्मत थी जिसे मामूली सा कजन भी नहीं पहुंचा था। और फिर दारा का ख्याल मेरे जहन में उभरा। अजीब बात थी कि वो जब भी मेरे हाथ आया बच निकला था। वो बहुत चालाक आदमी था। उसने हमेशा दूसरों को आगे किया था। उस पर हाथ डालने के लिए अब किसी खास हिकमत अमली की जरूरत थी। मैं दारा के बारे में सोचता हुआ माजी में चला गया। बात मेरे माँ बाप के कत्ल से शुरू हुई थी। उस वक्त मैं बच गया था और दारा जैसे दुश्मन से जान बचाने के लिए छुपता फिरा था। महाराज ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकूं, अगरचे मैंने बहुत अरसे से दारा को कहीं टिकने नहीं दिया था। उसके कई बंदे मेरे हाथों मारे गए थे, लेकिन उन आदमियों की मौत का उसे कोई अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसके अपने आदमी नहीं थे, भाड़े के टट्टू थे। उसकी नजरों में इंसान और कुत्ते का मर जाना एक बराबर था। लेकिन मैं दारा नहीं था। मुझे अपने आदमियों से उन्स था, प्यार था, और दारा की वजह से मेरे 3 दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मेरे दिल में शुरू से ही दारा के खिलाफ इंतकाम का जज्बा था, लेकिन अब इंतकाम के साथ एक मकसद भी शामिल हो गया था। शहनशाह के खिलाफ एक बहुत खौफनाक साजिश हो रही थी, जिसमें हुकूमत के कुछ लोग भी शरीक थे। इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए दारा और पेड्रो जैसे लोगों की खिदमत हासिल की गई थी। इस इलाके में किसी जगह कोई ऐसी खुफिया मीटिंग होने वाली थी जिसमें थाई हुकूमत के साजिशी अफसरों के अलावा जनरल खोराट की शमूलियत भी मुतवक्को थी, और महाराज ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं न सिर्फ उस मीटिंग में तय पाने वाले मंसूबे का पता चलाऊं, बल्कि हुकूमत के उन साजिशी अनासर को भी बेनकाब करूं। लेकिन यहाँ अगर मामला कुछ मुख्तलिफ नौयत इख्तियार कर गया था। शांग समेत जनरल खोराट के न सिर्फ 4-5 आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके थे, बल्कि उस असलहे का बहुत बड़ा जखीरा भी तबाह हो गया था, और जनरल खोराट ने एक तरफ थाई हुकूमत को धमकी दे दी थी और दूसरी तरफ मेरी गिरफ्तारी के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर के इनाम का ऐलान भी कर दिया था। वो शायद समझ गया था कि मैं जब तक जिंदा हूँ उनका ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता, और इसी दौरान दारा वो कार्रवाई कर गुजरा था जिससे प्रसाद की मौत की सूरत में मुझे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन मुझे ये नुकसान बहर सूरत बर्दाश्त करना था, और उसके साथ ही उस साजिश को भी नाकाम बनाना था जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया था। मुझे अच्छी तरह याद था, उस रात बैंकॉक के वार्ड ट्रेमेंट में महाराज और शहनशाह के कजन रत्ना कोसन के साथ होने वाली मीटिंग में उन दोनों ने मुझे वाशिगाफ अल्फाज में बता दिया था कि इस मिशन के दौरान में मुझे उन लोगों की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। मुझे जो भी कुछ करना होगा अपने तौर पर करना होगा, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि चियांग राय में पहले रंगोली और फिर उसके तवस्सुत से सरदार थालोब जैसे शख्स से मेरी मुलाकात हो गई थी। मैंने अगरचे थालोब को अपने असल मिशन के बारे में नहीं बताया था, लेकिन हेरोइन की तिजारत के हवाले से मेरे नजरियात से वो 100% मुत्तफिक था, और उसने मुझे हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई थी, जिसके नतीजे में हम पिछले 3-4 रोसेस कॉटेज में मौजूद थे, और उसका मोतमिद खास वांग डन मेरे साथ पूरी तरह इन सरगर्मी में मुलव्विस हो गया था। और आज दारा की इस खौफनाक कार्रवाई के बाद तो मुझे यकीन हो गया था कि जब मैं थालोब वगैरह को अपने असल मिशन के बारे में बताऊंगा तो वो पूरी तरह मेरा साथ देगा। वो एक मुहिब वतन आदमी था और शहनशाह का खैर ख्वाह भी। मैं सुबह 4 बजे तक लॉन में बैठा रहा और फिर उठकर अंदर आ गया। रंगोली सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। डाइनिंग टेबल के करीब कुर्सी पर लोमा बैठा ऊँग रहा था। मेरी आवाज सुनकर वो उठ गया। दरवाजा बंद कर दो, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं लोमा से कहता हुआ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, लेकिन दरवाजे में ठिठक कर रुक गया। थाई और जानकी बेड पर सोई हुई थी।
میں اس کمرے میں آ گیا جہاں رنگولی اور جانکی سویا کرتی تھی۔ بیڈ پر لیٹنے کے بعد بھی میں بہت دیر تک موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اس بات کی بھی تشویش تھی کہ وانگ ڈن نے کوئی اطلاع کیوں نہیں دی تھی۔ میری آنکھ صبح 8 بجے مختلف آوازیں سن کر کھلی۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا اور منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے لگا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو وانگ ڈن کے ساتھ رنگولی اور جانکی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ میرے کرسی پر بیٹھنے کے چند منٹ بعد ہی لوما نے میرے سامنے بھی چائے کا کپ رکھ دیا۔ باہر سے بھی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ لان میں گھاس پر 7-8 مسلح قبائلی بیٹھے ہوئے تھے۔ وانگ کی جیپ کے پیچھے 2 چھوٹے پک اپ ٹرک بھی کھڑے تھے۔ میں مڑ کر سوالیہ نظروں سے وانگ کی طرف دیکھنے لگا۔ محافظ ہیں۔ سردار تھالوب کی جیپ پر فائرنگ اور اس کے بندوں کے مارے جانے کی اطلاع صبح سویرے آس پاس کی قبائلی بستیوں میں پھیل گئی تھی۔ اس وقت شہر میں سینکڑوں مسلح قبائلی موجود ہیں جو تھالوب کے اشارے کے منتظر ہیں، مگر سردار تھالوب اس معاملے کو کوئی سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہتا۔ اس واقعے کی خبر رات ہی کو بینکاک بھی پہنچ گئی تھی اور اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے چند اعلیٰ سرکاری حکام بھی ہیلی کاپٹر سے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ سردار تھالوب حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، کیونکہ حکومت قبائلی بغاوت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آج 10 بجے ان اعلیٰ حکام کی سردار تھالوب سے میٹنگ ہے۔ سردار نے تمہیں بھی بلایا ہے۔ مجھے؟ ہاں، سردار کے خیال میں اس میٹنگ میں تمہاری شرکت بھی ضروری ہے۔ ہم 9:30 بجے یہاں سے چلیں گے۔ رات کو کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ حملہ آور کون تھے؟ نہیں، پولیس کی کئی پارٹیاں رات کو ہی حملہ آوروں کی تلاش میں روانہ ہو گئی تھیں۔ شہر کے آس پاس کی بستیوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، پر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس حملہ آوروں کو سراغ نہیں لگا سکی، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ کیا واقعی؟ کون لوگ تھے وہ؟ دارا اور اس کے ساتھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ تھائی اس حملے میں زندہ بچ گئی تھی اور ہم اسے یہاں لے آئے تھے۔ او ہاں، اسے تو میں واقعی بھول گیا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، سو رہی ہے اس وقت، میں نے کہا، اور پھر اسے جیپ پر حملے کے بارے میں وہ سب کچھ بتانے لگا جو تھائی مجھے بتا چکی تھی۔ کیا تھائی کو یقین ہے کہ وہ دارا کی ہی آواز تھی؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زندگی بھر نہیں بھولا جا سکتا۔ کسی کا کہا ہوا کوئی جملہ، کوئی چہرہ، کوئی آواز۔ کچھ ہی عرصہ پہلے کنچن پوری میں تھائی ایک ایسی ٹریجڈی سے دوچار ہو چکی ہے جس کی تمام تر ذمہ داری دارا پر عائد ہوتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے تھائی کا گھر جلانے میں بھی دارا کا ہی ہاتھ تھا۔ کئی برسوں سے دارا سے آنکھ مچولی ہو رہی ہے ہماری۔ قدم قدم پر اس کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہی ہے۔ میں یا تھائی یا میرے ساتھیوں میں سے کوئی اور اس آواز کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ یقیناً دارا ہی تھا جس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے جیپ پر حملہ کیا تھا، اور اسے تھائی اور پرساد کی آمد کی اطلاع دینے والا وانگ سائی تھا، جس کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی شہر میں آزادی سے گھوم رہا ہوگا۔ وانگ سائی کون ہے؟ پیڈرو کا ایک گرگا۔ ایک آدھ مرتبہ بینکاک میں اس سے بھی ٹکراؤ ہو چکا ہے، لیکن میں نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، پر اب لگتا ہے کہ اسے ایک خاص مہرے کے طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حملہ آور کوئی بھی ہو، زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا، اور وانگ سائی کو بھی تلاش کر لیا جائے گا۔ بہرحال تم تیار ہو جاؤ، سردار انتظار کر رہا ہوگا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھائی اس وقت بھی سو رہی تھی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور 15 منٹ بعد جب تیار ہو کر باہر نکلا تو تھائی جاگ چکی تھی اور بستر پر لیٹی ویران سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں بیٹھ کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا اور تھائی سے باتیں کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں ہال میں پہنچا تو لوما میز پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ میں نے جانکی کو تھائی کے بارے میں بتا دیا اور وانگ ڈن کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ٹھیک 9:30 بجے ہم کاٹیج سے نکل رہے تھے۔ میں وانگ کے ساتھ جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ 2 گن مین پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ایک پک اپ جیپ کے آگے تھی اور ایک پیچھے۔ ان دونوں گاڑیوں میں قبائلی محافظ تھے جو بڑے چوکس نظر آ رہے تھے۔ سارا شہر بند تھا، کہیں بھی کوئی دکان کھلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھالوب کے آدمیوں کی ہلاکت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ کسی ممکنہ ہنگامے کے پیش نظر لوگوں نے اپنا کاروبار بند کر رکھا تھا۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر مسلح قبائلی ٹولیوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ یہ آس پاس کی بستیوں کے رہنے والے قبائلی تھے جو تھالوب کی جیپ پر حملے کی خبر سن کر شہر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان میں نہ صرف کیرن بلکہ دوسرے قبائل کے لوگ بھی شامل تھے، اور قبائلیوں کے اس اجتماع نے بھی لوگوں پر خوف و ہراس طاری کر دیا تھا۔ ہماری جیپ ایک کشادہ سڑک پر واقع ایک کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ کوٹھی کے سامنے سڑک پر سینکڑوں مسلح قبائلی بیٹھے تھے۔ ہمارے ساتھ آنے والے محافظوں کی دونوں گاڑیاں بھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی رک گئی تھیں۔ کاٹیج کی طرح اس کوٹھی کے گرد بھی وسیع رقبہ خاردار تاروں میں گھرا ہوا تھا۔
कोठी बहुत शानदार थी। हम जीप से उतरकर जैसे ही बरामदे में पहुंचे, सरदार थालोब बाहर आ गया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और मुझे बड़े एहतराम से अंदर ले गया। ड्राइंग रूम में 2 आदमी और भी थे, वो भी मुझे देखकर खड़े हो गए। तारुफ की रस्म के बाद हम सोफों पर बैठ गए। वांग डन सोफे के करीब खड़ा रहा। मैंने और थालोब ने मुनासिब अल्फाज में एक दूसरे से ताज़ियत का इजहार किया। थालोब को इस बात पर शर्मिंदगी थी कि उसके आदमी मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सके और खुद भी मौत के आगोश में पहुंच गए। उसमें उनका कोई कसूर नहीं था। उन पर घात लगाकर हमला हुआ था। अगर फौज का दस्ता भी होता तो शायद उसका भी यही हशर होता। मैंने कहा, हमलावर जो कोई भी हैं बचकर नहीं जा सकेंगे। पुलिस पार्टियां गर्च उनकी तलाश में हैं, लेकिन मेरे आदमी भी चारों तरफ फैल चुके हैं। इस किस्म की छापामार कार्रवाइयां करने वाले आमतौर पर आसपास की पहाड़ियों में रूपोश हो जाया करते हैं और किसी न किसी कबायली बस्ती में उन्हें पनाह मिल जाती है, लेकिन उन लोगों को किसी बस्ती में पनाह नहीं मिल सकेगी। मेरा ख्याल है उन्हें किसी बस्ती में पनाह लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी इत्तला के मुताबिक जनरल खोराट ने भी इन पहाड़ियों और जंगलों में बहुत से खुफिया अड्डे बना रखे हैं। उन्हें कहीं भी पनाह मिल सकती है, इसलिए कि हमलावरों का ताल्लुक उसी ग्रुप से है। क्या ये बात महज अंदाजे की बिना पर कह रहे हो तुम? क्या मैं ये बात पूरे वसूख से कह रहा हूँ। हमलावरों को लीड दारा कर रहा था। उसे इत्तला मिल गई थी कि थाई और प्रसाद तुम्हारी जीप में यहाँ आ रहे हैं। वो घात लगाए बैठे थे और जैसे ही जीप वहां पहुंची, उस पर सड़क के दोनों तरफ से गोलियों की बारिश कर दी गई। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर थाई की फराहम करदा इत्तलात की रोशनी में उसे बताने लगा कि जीप पर हमला किस तरह हुआ था। सरदार थालोब ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। हम दारा, पेड्रो और जनरल खोराट के हवाले से गुफ्तगू करते रहे। मैं बातों ही बातों में थालोब को तोलने की कोशिश करते हुए सोच रहा था कि उसे अपने असल मिशन के बारे में आगाह करना मुनासिब होगा या नहीं। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सका था कि फोन की घंटी बज उठी। वांग ने जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। 1-2 मिनट तक किसी से बात की और फिर माउथपीस पर हाथ रखकर थालोब से कुछ कहने लगा। उसने थालोब से अपनी जुबान में बात की थी। थालोब ने भी कुछ जवाब दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। इस दौरान में वांगडन ने फोन पर कुछ कहकर रिसीवर रख दिया था। बाकी बातें बाद में होंगी, इस वक्त मीटिंग में हमारा इंतजार हो रहा है। क्या मीटिंग में मेरा जाना भी जरूरी है? हाँ, मैं जरूरी समझता हूँ, थालोब ने जवाब दिया। उस वक्त 10:30 बज रहे थे। हालांकि मीटिंग के लिए 10 बजे का वक्त मुकर्रर था। वो दोनों आदमी भी हमारे साथ थे। पोर्टिको में थालोब की सिल्वर कलर की शानदार मर्सिडीज कार भी खड़ी थी। मैं और वो दोनों आदमी थालोब के साथ उस कार में बैठ गए। स्टीयरिंग थालोब ने संभाल लिया था। वांग अपनी जीप में सवार हो गया था। मीटिंग पुलिस चीफ के दफ्तर में थी। हमें वहां पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मीटिंग रूम में नाटे कद वाले पुलिस चीफ, बैंकॉक से आए हुए आला हुक्काम और मकामी इंतजामिया के आला ओहदेदारों के अलावा शहर के चंद मोअज़्ज़िज़ीन भी शामिल थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि थालोब की जीप पर हमला कितना गैर मामूली वाकया था। हम अपनी सीटों पर बैठे ही थे कि पेड्रो को 2 आदमियों के साथ मीटिंग रूम में दाखिल होते देखकर मैं चौंक गया। थालोब ने भी उसे देख लिया और मीटिंग शुरू होने से पहले मुतालबा किया कि पेड्रो और उसके साथियों को मीटिंग रूम से निकाल दिया जाए। बसूरत दीगर वो खुद वॉकआउट कर जाएगा और उसके बाद की सूरत हाल की जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। पुलिस चीफ और बैंकॉक से आया हुआ एक अफसर पेड्रो की हिमायत कर रहा था, लेकिन सरदार थालोब ने वाशिगाफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर पेड्रो जैसे मुजरिम इस मीटिंग में शरीक होंगे तो वो यहाँ नहीं बैठेगा। बिलाखिर पेड्रो और उसके आदमी को रुखसत कर दिया गया। बाहर जाते हुए पेड्रो ने थालोब और मेरी तरफ बड़ी खूंखार नजरों से देखा था। इस मीटिंग का मकसद सरदार थालोब का गुस्सा ठंडा करना, किसी मुमकिन हमले से बचने के लिए कोई समझौता करना था। थालोब इस इलाके का बासर आदमी था और इसीलिए बाज आला हुक्काम भी बैंकॉक से यहाँ पहुंच गए थे। बड़ी देर तक गर्मा गर्म बहस होती रही। थालोब का मुतालबा था कि न सिर्फ मरने वालों को मुआवजा दिया जाए, बल्कि हमलावरों को भी गिरफ्तार करके उसके हवाले किया जाए। उसने दारा, किम, चीफ आंग और पेड्रो के नाम भी दिए और मीटिंग रूम में पेड्रो की आमद का हवाला देते हुए इसने बड़े वसूख से बात कही थी कि पुलिस चीफ हमलावरों से बखूबी वाकिफ है। चीफ इस इल्जाम पर भड़क उठा, लेकिन इससे पहले कि सूरत हाल बिगड़ जाती, बैंकॉक से आया हुआ अफसर आला उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा देखकर न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि इस शख्स को मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कब और कहाँ देखा है। बात करते हुए उसने गर्दन बाएं तरफ घुमाई तो उसके कान से जरा नीचे दाएं जबड़े पर अंगूठे के नाखून के बराबर स्याह धब्बा देखकर मैं उछल पड़ा। मुझे सब याद आ गया।
उस रात बैंकॉक में वार ट्रेमेंट में मीटिंग के बाद शहंशाह का कजन रत्ना कोसन मुझे अपने साथ एक बंगले में ले गया था, जहां शहंशाह के खिलाफ होने वाली इसी साजिश के बारे में ब्रीफ करते हुए मुझे कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर भी दिखाई गई जिनके बारे में शुबा था कि उनमें से कोई इस साजिश में शरीक हो सकता है। उन्हीं में आंग सांग नामी इस शख्स की भी 3 तस्वीरें थी, एक सामने से खींची हुई और 2 साइड पोज। एक तस्वीर में उसके दाएं तरफ कान के नीचे जबड़े पर अंगूठे के नाखून के बराबर स्याह धब्बा था, और अब उसे अपने सामने देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो वजारत दाखिला का सेक्रेटरी आंग सांग था। इस मीटिंग में सेक्रेटरी वजारत खारजा आंग सांग ने सरदार थालोब से मुतालबा किया कि मुझे और मेरे साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, मगर थालोब ने साफ इनकार कर दिया। मास्टर वजदान और इसके साथी मेरे मेहमान हैं, और तुम जानते हो हम कबायली मेहमानों को किस कदर एहतराम करते हैं। हम उनके लिए अपनी जान तो दे सकते हैं, पर उनके साथ कोई धोखा नहीं कर सकते। मास्टर वजदान और उसके साथी कानून शिकन नहीं है। अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने दिफा में किया है। अपनी जान बचाने का हक हर एक को हासिल है, और फिर इनके खिलाफ पूरे मुल्क में कहीं भी ऐसी कोई बाकायदा रिपोर्ट दर्ज नहीं है जिसकी बिना पर इन्हें कानून की गिरफ्त में रहने की कोशिश की जाए। सरदार थालोब, चीफ ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, कल सुबह जनरल खोराट के कॉटेज को आग लगाकर राख कर दिया गया, जिसमें उसका करोड़ों डॉलर मालियत का असलहा भी तबाह हो गया। और तुम जानते हो हम इस सरहद तक जनरल खोराट जैसे शख्स से पंगेबाजी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जनरल खोराट, उसे तुम ही जैसे लोग यहाँ कदम जमाने के मौके फराहम कर रहे हैं। उसे यहाँ अपने अड्डे बनाने की इजाजत किसने दी है? क्या यहाँ गोला बारूद जमा करने के लिए उसने थाई हुकूमत से इजाजत ली थी? ये गोला बारूद कानून के मुहाफिजों की नजरों में आए बगैर कैसे यहाँ तक पहुंचा? और फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस हट की तबाही में मेरे मेहमानों का हाथ है? थालोब ने गुस्से से कहा, उससे एक रात पहले एक कॉटेज में फांग फंग और उसके 2 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। फांग फंग जनरल खोराट का आदमी है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि। पुलिस चीफ ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम जानते हो कि जनरल खोराट के आदमी थे और यहाँ उनकी आमदोरफ्त गैर कानूनी थी, लेकिन तुमने उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी? हालांकि ये तुम्हारा फर्ज था, लेकिन हैरत की बात है कि तुमने बदनामे जमाना 3rd रेट गुंडे पेड्रो को इस मीटिंग में मदऊ कर लिया, जो यहाँ जनरल खोराट के एजेंट की हैसियत से हमारे मुल्क में मंशियात का जहर फैला रहा है। बैंकॉक में उसके खिलाफ नहायत संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं। चंद रोज पहले तक वो कानून को मोस्ट वांटेड आदमी था। उसे तो सलाखों के पीछे बंद होना चाहिए था, पर मुझे हैरत है कि वो यकायक किस कदर अहम क्यों हो गया कि उसे इस अहम मीटिंग में भी बुला लिया गया। थालोब चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, इस मीटिंग हॉल में मुझे कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो कभी भी शहंशाह या थाई हुकूमत से मुखलिस नहीं रहे। मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ अब तक जो भी वाकयात रूनुमा हुए हैं वो उस साजिश का हिस्सा हैं। मेरी जीप पर फायरिंग भी इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस खित्ते में जब तक भी एक कैरन कबायली जिंदा है, शहंशाह या थाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। सिर्फ कैरन ही नहीं, यहाँ मेओ, याओ, एको, लाहू और लियो जैसे वफादार और बहादुर कबीले आबाद हैं। इन कबायलियों ने माजी में हमेशा अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, और वो आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सरदार एक बार फिर खामोश हो गया, बारी बारी उनके चेहरों को देखता रहा और फिर बोला, इस वक्त शहर की सड़कों पर जमा हजारों मुसल्लह कबायली मेरे एक इशारे के मुंतजर हैं, लेकिन मैं यहाँ की पुलिस और इंतजामिया के लिए मसले पैदा नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है, हमलावरों और कातिलों को 36 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए। मैंने इनमें से कुछ नाम भी पुलिस चीफ को दे दिए हैं। उनमें दारा भी शामिल है, जिसने पहले टाइगर और अब पेड्रो जैसे लोगों को अपने मोहरे बनाकर इस मुल्क में कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर रखा है। और अब मेरे ख्याल में उसे कुछ बददियानत और बेज़मीर सरकारी अफसरों की भी हिमायत हासिल हो गई है। मैंने उनकी गिरफ्तारी के लिए 36 घंटों की मोहलत दी है। मैं दी हुई इस मोहलत के आखिरी सेकंड तक इंतजार करूंगा। उसके बाद मेरे आदमी उन्हें खुद तलाश कर लेंगे, और अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। थालोब की तकरीर के दौरान में वहां बैठे हुए लोगों के चेहरों का मैं जायजा ले रहा था। मैंने नोट किया था कि थालोब ने जब शहंशाह के खिलाफ किसी साजिश की बात की तो आंग सांग और एकीमाई के चेहरों के रंग एक लम्हे को मुख्तिर हो गए। एकीमाई भी हुकूमत के एक आला ओहदे पर फाइज थी और आंग सांग वगैरह के साथ बैंकॉक से आई थी। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी, लेकिन वो अपनी उम्र से कम दिखाई दे रही थी। कम से कम 10 साल छोटी लग रही थी। बेहद हसीन औरत थी वो, और उसे देखकर कहा जा सकता था कि उसने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा हुआ था। पुलिस चीफ की हालत तो काबिल दीद थी।
سردار تھالوب نے اعلیٰ افسران کی موجودگی میں اس پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے تھے اور وہ آئیں بائیں شائیں کر کے رہ گیا تھا۔ یہ میٹنگ 3 گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حکام بینکاک سے اس لیے آئے تھے کہ یہ ایک بڑے قبائلی سردار کا معاملہ تھا۔ سرحدوں پر آباد قبائل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بغاوت کر دینے کے عادی تھے اور قبائلیوں کی بغاوت کسی بیرونی حملے سے زیادہ خطرناک ہوتی تھی۔ ان علاقوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بالآخر حکومت کو ہی گھٹنے ٹیکنے پڑتے تھے، اور یہ معاملہ تو ایک بہت بڑے قبیلے کا تھا، اور حکومت جانتی تھی کہ اگر کوئی گڑبڑ شروع ہو گئی تو اس خطے میں آباد دوسرے چھوٹے قبائل بھی کیرن کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے سردار تھالوب کی جیپ پر حملے کی اطلاع ملتے ہی اعلیٰ حکام بینکاک سے یہاں پہنچ گئے تھے۔ یہاں پر پارٹ 22 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 23 سماعت فرمائیں۔